Hello students, welcome back to the without delaying. Let us start with the topic today. I have already told you in the previous video lecture that what is the meaning of conflict. Conflict means that any kind of disagreement, any kind of argument that takes place in a organization or within any person or between individuals, that is conflict. We have also studied that conflict arises due to difference in the goal, difference in thought and ideas, and difference in emotional levels. Now, we have also studied various level of conflict. The first level is intrapersonal, that is within an individual. Second one is interpersonal, that among individuals. And then we have studied about intra-group conflict, that the conflict which occurs within the group of any organization. Then we have also studied about intergroup conflict, means the conflict that takes place between two groups. And then we have studied about intra-organizational conflict, that means within an organization any kind of conflict has taken place. In today's video lecture, we'll start with the process of conflict that I have already discussed with you as in the previous video lecture, that this is important topic and you have to understand each and every aspect of this particular topic. So without delaying, let us get started. As here you can see that there is a whole process of conflict: latent conflict, perceived conflict, then comes tangible conflict, then comes manifested conflict, then comes consequence, then comes conflict solution, and after solution of the conflict, we go to the latent conflict. So let us understand each and every step, and then we'll come back to the diagram to understand the whole process of the conflict. First one is latent conflict stage. So in this stage, conflict is hidden. Although there are conditions for starting it, the causes of these conflict are competing for insufficient resources, differences in goals, and orientation towards organizational independence. So यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पता नहीं चला है किसी को, बहुत ही हिडन स्टेज में है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन हो गई है जहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकता है. ये आपका एक लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टेज होता है कि कॉन्फ्लिक्ट अभी हिडन है, ज़्यादा किसी को पता नहीं है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने के सारे चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं. डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टेज के, जैसे कि बहुत ही कम रिसोर्सेज है जिसके लिए सभी आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उन रिसोर्सेज को पाने के लिए, या लोगों का गोल अलग अलग है, या लोगों का ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है. तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं आपके कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट होने के. Then comes conflict perception stage. In this stage, all parties become aware of the latent conflict. There are several situations in conflict perception. Sometimes conflict is perceived although it does not exist, or latent conflict exists but people do not recognize it. तो अभी conflict latent conflict stage में हमने देखा कि एक बहुत ही दबी हुई सी कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन है, ज़्यादा किसी को पता नहीं है इसके बारे में. पूरी कंडीशन है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लोगों को पता नहीं, हिडन फॉर्म में. लेकिन सेकंड स्टेज में हम देखते हैं कि सभी को धीरे धीरे पता चलने लगता है कि यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है. तो दो स्टेज हो सकते हैं, मतलब कई तरीके से हम परसीव कर सकते हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को. हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो और आपको पता ही ना हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो लेकिन आपको लगता है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है. हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो, आपको पता भी है, लेकिन आपको लग रहा हो कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जबकि ऐसा नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही लोअर लेवल पे है अभी. या हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ही लोअर लेवल पे है, जबकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया. तो ये मतलब एक परसीव करने वाला स्टेज होता है. अलग अलग लोगों को पता चलता है कि अच्छा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, और उसके हिसाब से वो परसीव करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि उस कॉन्फ्लिक्ट का क्या लेवल है. Then third stage आता है आपका stage in which conflict is personalized. Here a personalization of conflict happen. In this stage, both sides in conflict feel tensions and experience anxiety and other uncomfortable feelings. तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि
लोगों को अब जो कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है, इसमें जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको उनका अपना एक पर्सनल मतलब आप कह सकते हैं पर्सनल अटैचमेंट स्टार्ट हो जाता है इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ। वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, एक टेंशन की सिचुएशन उनके अंदर आ जाती है, उनको बहुत ही ईजी नहीं फील होता, एक अनईजीनेस की फीलिंग आ जाती है उनके अंदर क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है। Then manifested conflict stage. In this stage, low spirits between actors in conflicts are recognized. The conflict behavior is represented in several ways, from complete apathy to open aggression, which is often contrary to organizational rule. अब यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट है, सबको पता चल गया है, आप भी अपने लेवल पे बहुत टेंशन फील कर रहे हो और आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को पहचान लिया है और उसी कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से अब आप हरकतें कर रहे हो। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट है तो आप दूसरे से बहुत ही रूडली बात कर रहे हो, अपना एग्रेशन बार बार दिखा रहे हो, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल रूल के बिल्कुल अगेंस्ट है। Then consequences stage. In this stage, we have the result of obvious conflict. It is either solved or there is no satisfactory solution and the conflict goes back to the latent conflict stage. तो अब ये आपका कॉन्सिक्वेंसेस स्टेज आ जाता है जहां पे हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट आ जाता है, जो ऑब्वियस कॉन्फ्लिक्ट है उसका रिजल्ट आ जाता है। तो या तो वो सॉल्व हो जाता है, तब तो वहां पे सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया, दोनों पार्टी सेटिस्फाइड हैं। अगर ऐसा सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर से वो लेटेंट स्टेज पे आ जाती है, मतलब कि सबको लगता है कि अब तो सॉल्यूशन निकल चुका है कॉन्फ्लिक्ट का, तो अब तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हिडन होती है कॉन्फ्लिक्ट। फिर सबको पता चलता है कि अच्छा ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तो अभी है इन लोगों के बीच में। फिर वो पर्सनल लेवल पे लोगों को डिस्कम्फर्ट फील कराने लगती है और फिर बाद में लोग अपना एग्रेशन अपने एक्शन के थ्रू शो करते हैं और फिर से कॉन्सिक्वेंस स्टेज आता है। तो अब हम फिगर पे वापस जाते हैं। देखिए यहाँ पे यही चीज समझाई गई है। यहाँ पे जो पहला है लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें ये दिखाया गया है कि अभी कॉन्फ्लिक्ट एक हिडन फॉर्म में है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है, तो दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और ये चीज उन तक ही है। देन परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट, अब सबको पता चलने लगा है, सबने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से परसीव कर लिया है कि अच्छा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, या ऐसा तो होता रहता है, जो भी चीजें हैं। देन टैंजिबल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि अब आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को मतलब पर्सनल लेवल पे आपने ले लिया है, अब आपको वो पर्सनल लेवल पे टेंशन देने लगा है, एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आपको डालने लगा है। फिर आप इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनिफेस्ट करने लगते हो और इसी कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से आप रिएक्ट करने लगते हो। ओके। देन उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अगेंस्ट उस कॉन्फ्लिक्ट को माइंड में रखते हुए बिहेव किया है, तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, हो सकता है कि सॉल्व हो जाए और वो कॉन्फ्लिक्ट वहीं पे खत्म हो जाए, और जो अनसॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है वो वापस से लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में, कंडीशन में पहुंच जाता है। फिर से ये सारे स्टेप्स यहाँ पे फॉलो होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट तब तक सॉल्व नहीं होता है जब तक कि एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आप दोनों पार्टी को नहीं दे देते हैं। Okay, this is the process of conflict. This was given by Pondy, and this is the source of this particular diagram. Now, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, किस तरीके से आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। ओके, क्या वो सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डायग्नोसिस, सेकंड वन इज इंटरवेंशन, थर्ड वन इज कॉन्फ्लिक्ट, देन फोर्थ वन इज लर्निंग एंड इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। डायग्नोसिस, इन दिस स्टेज इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन अफेक्टिव एंड सब्सटैंटिव। आपको याद होगा सब्सटैंटिव वो कॉन्फ्लिक्ट था जहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिसएग्री कर रहे थे, एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम अपने पॉइंट्स रख रहे थे, जबकि अफेक्टिव में हमने देखा था कि यहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व हो गए थे। ओके। Substantive conflict and explore strategies which are used by managers and employees in solving these conflict. The most important issue is to find out the cause of conflict. तो बेटा एक चीज का यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये process of conflict था। पूरे कॉन्फ्लिक्ट का क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो स्टार्ट होता है, कैसे वो एंड होता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमें पता है कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कैसा है, कहाँ पे है, और हम उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका एक अच्छा रिजल्ट आ जाए और वो रिजॉल्व हो जाए। ओके। तो सबसे पहला है आपका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कब से हैं, और क्या रीजन है इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का। तो हम पहले डायग्नोस करते हैं
कि हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों है और उसका रूट कॉज क्या है। देन इंटरवेंशन, जब हमने डायग्नोस कर लिया, उसके कॉज को फाइंड आउट कर लिया, तो अब हम इंटरवीन करते हैं कंडीशन में। आफ्टर प्रॉपर डायग्नोसिस इट इज इजी टू फाइंड आउट इफ एनी इंटरवेंशन इज नेसेसरी। अब हम कॉन्फ्लिक्ट को जब हम पहचान लेते हैं तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि क्या हमें इसमें इंटरप्ट करना चाहिए, क्या हमें इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होना ज़रूरी हो ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का। हो सकता है कि कई जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपने आप ही आपस में ही वो लोग रिजॉल्व कर लें। इसीलिए यहाँ पे डायग्नोस करने के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारा इन्वॉल्वमेंट इसमें नेसेसरी है कि नहीं। अगर है तो हम उसमें फिर इंटरवीन करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट हैज टू डायमेंशन, वन कंसिस्टिंग ऑफ डिसएग्रीमेंट रिलेटिंग टू टास्क इशू एंड द अदर कंसिस्टिंग ऑफ इमोशनल एंड इंटरपर्सनल इशू व्हिच लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे हम ये देखें कॉन्फ्लिक्ट वाली स्टेज होती है, किस अमाउंट और कितना कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे, और कॉन्फ्लिक्ट का स्टाइल क्या है, क्या वो बहुत रिगरस हो चुका है या वो हल्का फुल्का ही कॉन्फ्लिक्ट है। हम ये बात इस स्टेज में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एंड देन कम्स लर्निंग एंड इफेक्टिवनेस, मतलब कि जब हम देखिए ओवरऑल प्रोसेस अगर मैं आपको ये समझाऊं तो यहाँ पे ये होता है कि सबसे पहले हम पहचानते हैं, डायग्नोस करते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है क्या, कितने कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसका कारण क्या है। फिर हम देखते हैं कि हम क्या इसमें हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जब हम इन्वॉल्व होते हैं फिर हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, कितनी ज़्यादा कम हो चुकी है, और अल्टीमेटली हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और कोशिश करते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट से इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग हो, मतलब लोगों को सीखने को मिले, लोगों को एक दूसरे के थॉट्स और आइडियाज को रिस्पेक्ट करना वो सीखें। या हो सकता है कि अगर डिसअग्री करें तो पोलाइट वे में किस तरीके से डिसअग्री करना है ये बात वो सीखें। तो मतलब कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई तरीके का लर्निंग मिले और अल्टीमेटली उस लर्निंग के थ्रू एक फीडबैक मिले। तो ये आपका पूरा इन चारों स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं। सबसे पहले आप पहचानते हैं कॉन्फ्लिक्ट है, अगर हाँ तो क्या हमें उसमें इंटरफियर करने की ज़रूरत है, इंटरवीन करने की ज़रूरत है। अगर हाँ तो हम उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि कितना ज़्यादा ये इशू बढ़ चुका है, कितना इमोशनल एस्पेक्ट इसमें इन्वॉल्व है, कितना पर्सनल एस्पेक्ट इसमें इन्वॉल्व है। उस हिसाब से हम सॉल्यूशन खोज के कोशिश करते हैं कि जितने भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व थी उन सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। इस तरीके से हम मैनेज करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। Now the next topic is conflict management strategies and style. What are the different strategies through which we manage a conflict? सबसे पहला है strategy of negotiation. देखिए जो सबसे easy और सबसे आसान तरीका होता है वो negotiate करके, कॉन्फ्लिक्ट को नेगोशिएट करके आपस में ही बात को सुलझा के एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ के जहाँ पे दोनों पार्टी अग्री हो रही हो, दोनों पार्टी की कोई कोई बात मानी जा रही हो, दोनों पार्टी को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल जाए, तो नेगोशिएट करके हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी ऑफ सुपीरियर गोल। स्ट्रैटेजी ऑफ सुपीरियर गोल का मतलब ये होता है कि लोगों का कॉन्फ्लिक्ट से मन हटाने के लिए आप उनको कोई सुपीरियर गोल डेलीगेट कर देते हो, किसी अच्छे गोल की तरफ आप उनको लगा देते हो। दैट इज स्ट्रैटेजी ऑफ अ सुपीरियर गोल। देन थर्ड इज स्ट्रैटेजी ऑफ अ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इसमें नेसेसरी बन चुका है। क्या कर सकती है ये थर्ड पार्टी जो अब इन्वॉल्व हो चुकी है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग आपस में नेगोशिएट करके और इन सब तरीकों से सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो अब थर्ड पार्टी जब आई है तो वो इन सारे मेथड से उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। क्या क्या मेथड है, इंटीग्रेटिंग, ऑब्लाइजिंग, डोमिनेटिंग, avoiding and compromising. Integrating, this style assumes confrontation of attitudes, joint identification of the problem and proposing a potential solution. तो यहाँ पे कन्फ्रंट करते हैं सामने से जिसका गलत एटीट्यूड होता है कि आपका ये एटीट्यूड गलत है वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए, वर्किंग कल्चर के लिए, और आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कहाँ प्रॉब्लम आई, ठीक है, और जो पोटेंशियल सॉल्यूशन होता है उसको वो बताते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि
जैसे मान लीजिए कि दो पार्टी हैं, दो इंडिविजुअल हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो किसी एक हायर अथॉरिटी ऑफ पर्सन के पास जाते हैं, वो पर्सन जो है वो इनकी दोनों लोगों की बात को सुनता है, दोनों लोगों के एटीट्यूड में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको कन्फ्रंट करता है सामने से और प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचता है और उसके बाद एक सॉल्यूशन जो दोनों के लिए ही सूटेबल होगा उसको ऑफर करता है। ये पहला तरीका हो सकता है, थर्ड पार्टी जब आपके कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करती है तब उसका। Second one is obliging. This style assumes reduction of differences and focusing on common interests. Its advantage is encouragement of cooperation, but it does not solve the cause of the problem. अब यहाँ पे जो difference होता है लोगों के opinions का और जो common interest होता है, मतलब जो difference होता है उसको कम करने की कोशिश किया जाता है, जो difference of idea होता है, difference of जो assumptions होता है उसको decrease करने की कोशिश किया जाता है और जो उन लोग का कॉमन गोल होता है उस पे उन लोगों को फोकस कराया जाता है। तो उन लोगों को एनकरेज किया जाता है कि वो आपस में कोऑपरेट करें, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उनके हर उस जेस्चर को अप्रिशिएट किया जाता है जिसमें वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। तो इस तरीके से वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके जो लेवल है उसको कम कर देते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसका जो मेन रीजन था आप उसको सॉल्व नहीं किए हैं अभी तक। Okay, this is the second solution. Third is dominating. This style is common for people who are more focused on personal than on common interest. By using this style, managers focus employees to obey. अब यहाँ पे जैसा कि नाम आपको बता रहा है तो नाम के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि एक पार्टी जिसके पास पावर ज्यादा है, जो अच्छे ज्यादा ऊंचे डेजिग्नेशन पे है, वो दूसरी पार्टी जिसके साथ उसका आर्ग्यूमेंट हुआ है, जिसके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में है, उसको दबाने की कोशिश करती है, उसको सप्रेस करने की कोशिश करती है, उसके जो आइडियाज होते हैं, उसके जो थॉट्स होते हैं उसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देती है। ऐसे लोग ज्यादा फोकस्ड होते हैं अपनी तरफ और मजबूर करते हैं जो लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं उनको अपनी बात मानने के लिए। तो डोमिनेट करके ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देते हैं। Avoiding. This is passive style characterized by distancing from problems and hiding them. अब avoiding में ये होता है कि जहाँ पे avoid किया जाता है problematic situation को और दूरी बनाई जाती है, बचा जाता है, कोशिश किया जाता है कि किसी तरीके से बस avoid हो जाए situation और conflict, चाहे resolve हो चाहे ना हो चाहे जो भी हो लेकिन avoid हो जाए। एंड द लास्ट वन इज कॉम्प्रोमाइजिंग, जहाँ पे दोनों ही पार्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती है किसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि देर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड स्टाइल्स थ्रू विच कॉन्फ्लिक्ट कैन बी मैनेज्ड। कौन कौन सी स्टाइल होती हैं? पहला ये होता है कि दोनों पार्टी के बीच में नेगोशिएशन हो सकता है। फिर ये होता है कि दोनों को किसी सुपीरियर गोल की तरफ डायरेक्ट कर दिया जाए सो दैट वो अपने कॉन्फ्लिक्ट को भूल के उस गोल को अचीव करने में लग जाए। थर्ड हो सकता है कि दोनों पार्टी मिलके आपस में उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पा रही, इस वजह से किसी थर्ड पार्टी को इंटरवीन करना पड़ता है और वो इन सब ऑप्शंस के थ्रू इंटीग्रेटिंग, ऑब्लाइजिंग, डोमिनेटिंग, अवॉइडिंग और कॉम्प्रोमाइजिंग के थ्रू वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट को। ओके, सो इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि क्या प्रोसेस होता है कॉन्फ्लिक्ट का, कैसे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टिंग में हिडन होता है, फिर लोगों को पता चलता है, फिर वो बहुत ही पर्सनल हो जाता है और उसके बाद उसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लोग किस तरीके से गलत तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बाद में उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है और अगर वो सॉल्व हो गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो सॉल्व नहीं हुआ तो फिर से वो लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट की स्टेज में चला जाता है। तो यहाँ पे हमने पूरा प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखा और हमने देखा कि किस तरीके से मैनेज किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट को, मतलब कि पहले डायग्नोज किया जाता है कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट की मेन प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर कितना क्या कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे कि नहीं है, फिर इंटरवीन किया जाता है अगर नेसेसरी होता है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कितना बढ़ चुका है और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि उसको रिजॉल्व कर दें लेकिन लोग उससे कुछ ना कुछ सीखें। ठीक है, और इसी के हिसाब से हम फीडबैक प्रोवाइड करवाते हैं। इस तरीके से हम मैनेज करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को एक ऑर्गेनाइजेशन में। और फिर हमने देखा व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज, ये तो आपका प्रोसेस था, ठीक है, मैनेज कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का। अब यहाँ पे हम स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं कि जब थर्ड पार्टी इंटरवीन करती है या क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके थ्रू हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। हम नेगोशिएशन कर सकते हैं, हम एक सुपीरियर गोल की तरफ लोगों को डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर हम थर्ड पार्टी की हेल्प ले सकते हैं।
वो थर्ड पार्टी क्या करता है, वो दोनों पहला जो मेथड है उसको कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का वो इंटीग्रेट करता है, या फिर ऑब्लाइज करता है, या फिर डोमिनेट करता है, या फिर अवॉइड करता है, या फिर कॉम्प्रोमाइज करवाता है। इस तरीके से वो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो बेसिकली हमारा टॉपिक था उसको हमने कंप्लीट किया इस वीडियो लेक्चर में। स्टार्ट विद द टॉपिक group decision making. Now, since we are studying बिजनेस कम्युनिकेशन, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ग्रुप डिसीजन कैसे लिए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले तो देखिए, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय अ फाइनल बट बेस्ट चॉइस इज मेड अमंग द ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। तो जितने भी आपके पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं। Group decision making, also known as collaborative decision making, is a situation faced when individuals collectively make a choice from the alternatives before them. This decision is no longer attributable to any single individual who is member of the group. तो group decision making एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है सबका, कलेक्टिव एफर्ट होता है, कलेक्टिव चॉइस होती है, जो सबको ग्रुप में सही लगता है हम उसको कंसिडर करके डिसीजन लेते हैं। यही हमारा ग्रुप डिसीजन मेकिंग होता है, और इसी वजह से कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है इस डिसीजन के लिए। Group decision making can be defined as a process where decisions are made by a group after complete analysis of the situation. जब पूरी तरीके से सिचुएशन को एनालाइज कर लिया जाता है तो ग्रुप मिलके एक प्रोसेस के थ्रू इस पर्टिकुलर किसी भी चीज पे, किसी भी टॉपिक पे डिसीजन लेती है। Group decision making can be effective way of arriving at a solution for certain types of problem. तो किसी भी प्रॉब्लम में एक इफेक्टिव वे में उसके सॉल्यूशन तक पहुंचने का जो पूरा प्रोसेस है, ये आपका ग्रुप डिसीजन मेकिंग होता है। अब देखिए, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ decision making. First one is consensus mode and second one is majority vote. When all members of the group agreed to the decision arrived at, it is called consensus. तो consensus mode of decision making वो decision making होता है जहाँ पे सभी members जो group के होते हैं वो आपस में बात करते हैं, उस particular किसी भी solution के pros and cons को present करते हैं, सभी उस pros and cons के solution को खोजते हैं और सभी members जो हैं वो उसके solution पे agree होते हैं। तो यहाँ पे consensus के through हम एक solution पे आ जाते हैं, ये आपका consensus mode of decision making होता है। And second one is majority vote. If majority of group member agree to the decision arrived at, it is called majority vote. मतलब कि अगर बहुत सारे लोग वोट करते हैं किसी डिसीजन के लिए और उसके थ्रू हम डिसीजन लेते हैं, इस मेथड के थ्रू जहाँ पे हम वोटिंग करा रहे हैं लोगों से और एक डिसीजन ले रहे हैं, तो ये हमारा मेजॉरिटी वोट डिसीजन मेकिंग होता है। तो डिसीजन मेकिंग बेसिकली टू टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज कंसेंसस मोड एंड सेकंड वन इज मेजॉरिटी वोट। नाउ ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, देखिए ये प्रोसेस होता है पूरा ग्रुप डिसीजन मेकिंग का, ठीक है। अब इसमें पहला क्या होता है, डायग्नोज द प्रॉब्लम, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड। तो जब भी हम ग्रुप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, देखिए एक ग्रुप में किसी प्रॉब्लम के लिए हम डिसीजन ले रहे हैं तो उसका पूरा अपना एक प्रोसेस होगा, तभी हम कि हर एक मतलब इतना आसान नहीं होता, इट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, हमें हर एस्पेक्ट को कंसिडर करना होता है। इस वजह से ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बहुत ही सीरियसली हमको इसको लेना होता है, क्योंकि जो भी डिसीजन हम लेते हैं उसकी वजह से पूरा ऑर्गेनाइजेशन भी अफेक्ट हो सकता है। तो इस वजह से हम प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हैं। क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसेस है ग्रुप डिसीजन मेकिंग का? पहला है कि आपको डायग्नोज करना होता है प्रॉब्लम को, आपको समझना होता है कि पूरी प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, डायग्नोस करते हो। डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स, आप अब डिफरेंट सोर्सेज लाइक एक्सपीरियंस, प्रैक्टिसेस इन अदर ग्रुप, आइडिया, सजेशन, डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व, इन सब के थ्रू आप जितने भी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकते हैं उस प्रॉब्लम के, इन सब को आप कंसिडर करते हो। मतलब कि लोगों के जितने भी मेंबर्स हैं उस ग्रुप में, उनका एक्सपीरियंस जितना होता है,
बाकी के ग्रुप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं, क्या बाकी लोगों का आइडिया है, सजेशन है, ये सब कंसिडर करते हैं। ये सारे ऑल्टरनेटिव्स को हम कंसिडर करते हैं सेकेंड स्टेप में, सबको मतलब एक तरीके से कलेक्ट करते हैं। ओके, थर्ड में हम इन सारे ऑल्टरनेटिव्स के प्लस और माइनस पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं, ध्यान देते हैं कि अच्छा हमारे पास अगर इस प्रॉब्लम का 4 ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है तो हर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन का आप प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट कंसिडर करते हो पहले से और देखते हो कि कौन सा ऐसा डिसीजन है जिसमें प्लस पॉइंट्स ज्यादा है। आप फाइनली उसको इम्प्लीमेंट करते हो और मॉनिटर करना स्टार्ट करते हो कि जो डिसीजन आपने लिया था ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के थ्रू वो इम्प्लीमेंट हो रहा है ठीक से कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब भी हम ग्रुप में डिसीजन लेते हैं तो उसके बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। पहले हम डायग्नोस करते हैं प्रॉब्लम को, फिर हम देखते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, उन सारे ऑल्टरनेटिव्स के प्लस और माइनस पॉइंट्स को हम कंसिडर करते हैं और फाइनली हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और मॉनिटर करते हैं कि जो सॉल्यूशन अप्लाई किया गया है वो सॉल्यूशन सही है या नहीं है, सही से अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरीके से हम ग्रुप डिसीजन मेकिंग करते हैं। हाउ डू ग्रुप्स मेक डिसीजंस। अब जो ग्रुप है वो किस तरीके से डिसीजन लेती है, तो यहाँ पे तो हम प्रोसेस की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ग्रुप जो है वो डिसीजन लेती है। Please remember that this particular topic, that is group decision making process, is more important than how do groups make decisions. तो सबसे पहली बात तो ये है कि ग्रुप साइज आपकी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, 5 to 7 मेंबर्स होने चाहिए, तभी आप एक अच्छा डिसीजन ले पाते हो। बहुत ज़्यादा अगर मेंबर्स होंगे तो फिर बहुत तरह की कंफ्यूजन होगी, बहुत कम अगर मेंबर्स होंगे तो ज़्यादा आइडिया हमें नहीं मिल पाएगा। तो 5 to 7 मेंबर्स होने चाहिए ग्रुप में। Higher status of some group members in terms of background and expertise influences the other group members opinion। तो जो ग्रुप का कॉम्पोजिशन है वो बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कौन सारे मेंबर्स हैं हमारे सारे ग्रुप में। मतलब कि ऐसा ना हो कि बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को आपने ग्रुप में रख लिया है या बहुत हाई स्टेटस वाले लोगों को बहुत लोअर स्टेटस वाले लोगों के साथ एक ही ग्रुप में रख दिया है, इस वजह से जो डिसीजन होता है वो अफेक्ट हो सकता है। देन unanimity of group consensus, a united group exerts greater pressure to confirm than a group divided by dissension, that is disagreement। तो सबसे पहली बात ये, उसके बाद फिर ये है कि जो ग्रुप का डिसीजन होना चाहिए वो सबके कंसेंसस के थ्रू, सारे मेंबर्स के कंसेंसस के थ्रू ही आना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट उन लोगों में आपस में ही रहेगा तो एक अच्छा डिसीजन वो नहीं ले पाएंगे। उसके बाद रिस्की शिफ्ट, मतलब कि जब आप ग्रुप में डिसीजन लेते हो तो ऑटोमेटिकली जो रिस्क होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं आता है। तो दिस इज हाउ मतलब this is how a group makes the decision। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, किस तरीके से ग्रुप, जो ग्रुप डिसीजन मेकिंग होती है उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। देखिए एडवांटेजेस तो बहुत सारे होते हैं, अगर हम अभी इसको बिना पढ़े, इस नोट्स को बिना पढ़े अगर हम सोचें तो हम ये सोच सकते हैं कि हमें बहुत सारे आइडियाज़ का पता चलता है। वो एस्पेक्ट जहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया था उन सारे एस्पेक्ट के बारे में पता चलता है, हमारे पास बहुत सारे प्रोबेबल सॉल्यूशंस आ जाते हैं, तो ये सारे आपके एडवांटेजेस होते हैं। रिस्क फैक्टर डिवाइड हो जाता है, तो किसी एक इंसान पे ही पूरा रिस्क नहीं होता है डिसीजन का, कॉन्सिक्वेंसेस का। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं। फिर भी हम पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें, क्या क्या और एडवांटेजेस यहाँ बताई गई हैं। Compared to an individual, the group generally have greater knowledge, expertise and skill base to make better decisions। ये बात हमने डिस्कस की अभी कि इंडिविजुअल के पास इतना नॉलेज, इतना एक्सपर्टीज उस फील्ड में और इतना स्किल नहीं होगा एक अच्छा डिसीजन लेने में, लेकिन जब हम ग्रुप में काम करते हैं, ग्रुप में डिसीजन लेते हैं तो सबका नॉलेज, सबकी एक्सपीरियंस, सबकी एक्सपर्टीज, सबके स्किल्स को यूज करके एक बहुत ही अच्छे डिसीजन को हम ले सकते हैं। सेकेंड इज लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स प्रोवाइड मोर पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम। तो जितने ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, 5 to 7 जितने भी मेंबर्स हैं आपके उस ग्रुप में, वो प्रॉब्लम के क्या क्या पर्सपेक्टिव्स होते हैं उसको ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं।
Then third one is with larger number of group members, the participation also increases. That helps reach quality decision. तो ज़्यादा जब आपके पास काफ़ी लोग अवेलेबल होते हैं ग्रुप में, तो पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो डिसीजन होता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है. मान लीजिए किसी एक ने कोई पॉइंट, किसी एक मेंबर ने कोई एक पॉइंट रखा, दूसरे मेंबर को लगा कि नहीं इस पॉइंट में ये सारी प्रॉब्लम है, तो उसने उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया. फिर तीसरे मेंबर ने उसको लगा कि हाँ जो पॉइंट सेकंड पार्टिसिपेंट रख रहा है वो सारी पॉइंट सही हैं, उसने उसको सपोर्ट किया. तो इस तरीके से एक पूरा प्रोसेस होता है, लोग आपस में अपने आइडियाज़ को बहुत ही ओपनली शेयर करते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा और क्वालिटेटिव डिसीजन हम ले पाते हैं. Then, following increased participation, comprehension of final decision arrived at is usually high. तो ultimately जब बहुत लोग participate करते हैं, उनके participation, उनके skills और knowledge और experience को use करके हम decision लेते हैं, तो ultimately बहुत ही comprehensive final decision हमें मिल पाता है. So these are the advantages of group decision making. Now, what are the disadvantages of group decision making? First one is it is a time consuming process. Of course it is a time consuming process. आप टाइम मैच कराते हो, टाइम शेड्यूल आप फिक्स करते हो, सभी मिलके और उस टाइम शेड्यूल पे मिलते हैं, आप उस उतने टाइम का वेट करते हो, फिर आपस में डिस्कशन होता है कि रिजल्ट पे हम आते हैं, उतना टाइम फिर से लगता है. तो ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है. सेकेंड इज इन्फ्लुएंसिंग मेंबर्स यूजुअली मैनिपुलेट द ग्रुप डिसीजन इन अ डायरेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड लाइकिंग. तो लोगों को इन्फ्लुएंस कर जब लोग कर लेते हैं ग्रुप में, तो उनके डिसीजन को भी वो मैनिपुलेट कर पाते हैं, और एक मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आप, ये पूरी तरीके से विदाउट पार्शियलिटी वो डिसीजन उनको नहीं लेने देते, उनका डिसीजन कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है. देन थर्ड वन इज समटाइम्स डिसीजन मेड बाय द ग्रुप मेंबर आर सिंपली अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द वेरियस व्यूज एंड ऑप्शंस ऑफर्ड बाय द ग्रुप मेंबर्स. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक इंसान के बात को इतना ज़्यादा अपोज किया जाता है कि उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन हो जाती है उसकी, और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा अच्छे से नहीं रख पाता है. तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि जो ज़्यादातर लोगों को सही लगता है वही काम किया जाता है, डिस्पाइट कि जो चीज़ सही है उसको किया जाए. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग के. बाकी आप ग्रुप डिसीजन मेकिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस तो अपने से भी बता सकते हो, जैसे कि मतलब बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है अगर क्लैरिटी नहीं है आइडियाज़ में. और बाकी डिसएडवांटेजेस ये भी हो सकते हैं कि जो है वो आपको हो सकता है ये लोग फीस चार्ज करते हो उस ग्रुप डिसीजन मेकिंग के लिए, तो वो एक्सपेंसिव भी हो सकता है आपके लिए. तो देयर आर वेरियस अदर disadvantages of group decision making. Now, there are certain techniques of group decision making, that is brainstorming, nominal group technique, Delphi technique, consensus mapping. ये कुछ टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू हम जितने भी ग्रुप डिसीजन मेकिंग होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं. तो आज हम अपना वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड कर रहे हैं. हमने पढ़ा कि जो ग्रुप डिसीजन मेकिंग होता है वो क्या होता है, फिर हमने ये पढ़ा कि कितने टाइप का डिसीजन मेकिंग होता है, फिर हमने ये पढ़ा कि जो आपका ग्रुप डिसीजन मेकिंग होता है इसका प्रोसेस क्या होता है, और हमने ये पढ़ा कि ग्रुप किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग के, और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टेक्निक्स ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग से कंटिन्यू करेंगे. टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर.